Namaste. Uh, they say that children, if you invest in them, you invest in the future of a nation. And I'm reminded of that today, being the Children's Day, 14th of November, such an important and day for us to remember that children make all the difference. Children laughing, children, smiling children, jumping children, change the way we think about everything. And that is one of the things I miss seeing in children. When I happen to be in a class held by an NGO for slum children. And when I saw them so depressed, now that is where Anufan Yoga came about. Inspired by the children, inspired to give happiness and raise the happiness bar in children, Anufan Yoga came about. But today, as we are growing in the entire gamut, कि बच्चों के लिए हम क्या करें, बच्चों के लिए बच्चों को हम कैसे सम्यक बनाएं, बच्चों को how do we make children to be leaders, how do we make children to be self-dependent so that they can bring interdependence in a harmony in our nation. So today we have with us Kaleem. Hi, Kaleem. Hello. Hello, Anuji. He is, yeah. So it's very interesting. There's a story of how we met and how we got involved with the idea of doing something for children, because Kaleem has been through National School of Drama doing that for children for a long time. And now he's with the Intercultural School in Singapore and studying all sorts of like amazing Asian theater, like Korean and Japanese and whatnot, which I was hearing about. Yes, Kaleem. But anyhow, so let's take this forward, Kaleem. What would you say about the relevance of today? What do you feel? कैसा लगता है आपको? Thank you first of all for the Anu Agrawal Foundation, and definitely it's you. And I really appreciate the work you're doing with the children, and that's what make me connect with you, because when I saw some picture in your page, Anu Agrawal Foundation, and the children are smiling and you are very comfortable with them, that's make me somehow to approach you for such kind of work with children. And I really want to know that what kind of work are you doing with the children. And yeah, that makes me interested about you. And I think that's really very necessary for nowadays, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा busy हो गए हैं. एक तो we can say that this virtual world, and especially nowadays everything is going to be online because of this COVID-19, even the education and all the classes. But there are lots of children who really don't have such chance to do such things. तो हम उनके बीच में भी अगर मतलब अपने एनर्जी के साथ, और बच्चों की एनर्जी तो जाहिर सी बात है वो हमसे भी बेहतर होती है, तो उनके बीच में हम कैसे जाएं. और मैं, क्योंकि जैसा आपने बोला ही है कि मैं बच्चों के साथ I already means when I started my career in theater, in acting, I started with children theater. So I know the importance of theater in children's life. Yeah. Yeah, I mean, the thing is that talking about you started, आपकी शुरुआत जीवन की चिल्ड्रन थिएटर के साथ हुई. मेरी तो पर्सनल लाइफ में मेरी शुरुआत थिएटर से हुई है एज अ चाइल्ड. So I was in the 7th grade when I got selected to do a school play, which was a monologue, 14 A-size sheet monologue, where Hercules or somebody asks, Theodorus a question. सिर्फ एक लाइन का वो क्वेश्चन पूछता है, some philosophy.
and this guy takes 14 A4 size sheets to answer. तो खैर anyway मेरा वहां सिलेक्शन हो गया था और मैंने फिर children, then I got to be known as the the actor in school apart from other things, and I started the drama theater in school. तो ड्रामा का कुछ था नहीं वहां स्कूल में हमारे, तो मैंने उसकी शुरुआत करी और by the time I was in 9th grade I acted and directed a play. The cat anyway. So even my life, my personal life is with theater as a child, you know. And I मुझे मैं अब जब तब तो मैं तब क्या पता चल रहा था, पर अब जब मैं देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि उस बैकग्राउंड में जो कि क्योंकि थिएटर ने मेरे लिए क्या किया, स्पेशली अब जो मैं योगा और इसमें माइंडफुलनेस और इसमें मैं इतनी लगी हुई हूँ, तो मेरे को कई ना विजन्स आते हैं, कई क्लियर पिक्चरें आती हैं कि देखो तुमने ये सीखा थिएटर में जब तुम 8वीं क्लास में थी या 9वीं क्लास में, उसने तुमको कितना हेल्प किया, जैसे कि फॉर इंस्टेंस टीम वर्क, यू नो, क्योंकि हम थिएटर में जब हम थिएटर करते हैं, जब हम प्ले करते हैं, तो हम उसमें लोगों की इज्जत करना सीखते हैं, यू नो, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स, बिकॉज उसकी लाइन जब तक कंप्लीट नहीं होगी मेरी लाइन नहीं आएगी एज एन एक्टर. Yes, we need to wait for each co-actor's line, and yeah. Has it ever happened to you that the other guy forgot his line and then you were waiting for him to finish his line? Yeah. Actually, yeah, that's a good point, that in the theater we learn the teamwork and we know how to react for other people and how to respect their other space. क्योंकि जैसे कि लाइंस के लिए वेट करना एक बहुत ही मतलब कि कॉमन सी बात है थिएटर में, लेकिन ये है कि वो वेट करना, जैसे हम भी अभी अब मान के चलिए बात कर रहे हैं एक दूसरे को, अगर हम सिर्फ सुने नहीं, अब मैं सिर्फ अपनी बात कहते चलूं, तो वो कहीं ना कहीं उस डिसिप्लिन को बिगाड़ता है और हम एक दूसरे को सुनते नहीं है. तो थिएटर में ये बात तो है कि टीम वर्क नाम की जो चीज है उसको हम अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि लाइंस के अलावा मान के चलिए जैसे हम लोग बैक स्टेज में प्रॉप्स रख देते हैं और मालूम पड़ा कि कोई और किसी के प्रॉप उठा करके भाग गया, खासकर और एंट्री के टाइम पे हम भूल गए कि अरे मेरा प्रॉप का और मुझे एंट्री लेनी है अभी. तो वो सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वहां पे हमें ये मालूम होता है कि नहीं, हमें दूसरे के प्रॉप्स को, दूसरे के कॉस्ट्यूम को भी उतना ही रेस्पेक्ट देना है. तो हम एक दूसरे के मतलब कुल मिलाकर के स्पेस को और हर चीज को रेस्पेक्ट देना शुरू करते हैं. So I think that's a good point that you're talking about the teamwork. Yeah, and for children it's very important because when they started to doing theater, so yeah, they start to learn to collaborate with the other children. Right. हाँ बिल्कुल जरूर. और दूसरी बात यह है कि एक ना एक्सेप्टेंस, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस, मतलब टीम वर्क, और हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो जैसे कि इवन हम अवेयर होने शुरू हो जाते हैं किस चीज का, जैसे स्टेज है, हाँ, तो स्टेज पे क्या प्रॉप्स हैं, तो उससे क्या होता है कि हम अपने कमरे के बारे में भी ज्यादा सजग होना शुरू होते हैं कि मेरे कमरे में क्या है, यू अंडरस्टैंड. तो जैसे हम जब एक योग में, जब हम एक मैं करवाती हूँ एक शवासन में रिलैक्सेशन, उसमें एक जगह मैं ये कहती हूँ कि आप जो हैं लोग लेटे हुए हैं शवासन में, आंखें बंद हैं उनकी, रिलैक्स पोस्चर में लेटे हुए हैं, और मैं उनसे कहती हूँ कि आप बंद आंखों से अपना पूरा कमरा देखिए और ये देखिए पहले कि आपके बगल में कौन है और आपके आसपास कमरा क्या है, कौन है, क्या क्या चीज है उसके अंदर. तो क्या पंखा है, क्या वहां कुर्सी है, क्या वहां खिड़की है, खिड़की से क्या दिखाई पड़ता है, अच्छा खिड़की से बाहर एक रोड दिखाई पड़ती है, अच्छा वहां एक पेड़ है, पेड़ पे कौन बैठा हुआ है, अच्छा फिर पेड़ के बाद में क्या दिखाई पड़ता है, अच्छा दूसरा पेड़ है. फिर उसके बाद ये एक एक्सटर्नल अवेयरनेस हम क्रिएट करते हैं, मैं करती हूँ. फिर उसके बाद में इंटरनल अवेयरनेस फिर अंदर लेके आती हूँ कि अब अपने अंदर देखना शुरू करो, हाँ आपकी ब्रीदिंग कहाँ चल रही है, आप कहाँ, तो यू नो दिस द अवेयरनेस बिल्डिंग
which I have learned in yoga and which I teach now, when I look back at theater, it started there, you know. Yeah. क्योंकि हम लोग जैसे आपने बताया प्रॉप है, अब हम कैसे प्रॉप को, एक हमारे अंदर एक अवेयरनेस इसकी भी आती है कि यार मुझे अपनी चीजें खुद देखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, यू नो Responsibilities, yes. दैट कि आज आपका तो वो लेके भाग गया प्रॉप पे लड़का बट ये हमको समझ आता है कि हम कैसे अपने बारे में रिस्पॉन्सिबल हों, अपने कपड़े, हमने क्या कपड़े पहने, कैसी हमारा क्या कॉस्ट्यूम है, इस ये हम प्ले कर रहे हैं तो इसमें हम ऐसा कॉस्ट्यूम पहनते हैं, तो हम अपनी ड्रेस सेंस in a certain way, like when I did fashion and became, whatever model and whatever model later, तब वहाँ कॉस्ट्यूम के बारे में, पर मुझे ये समझ में आया, और फिल्मों में भी तो मुझे ये होता था कि अगर मुझे कोई कैरेक्टर प्ले करना है तो उसके हिसाब की उसकी कॉस्ट्यूम बहुत जरूरी है। जैसे कि आशिकी में मैंने एक ठान लिया था कि मैं पिक्चर नहीं करूंगी अगर मुझे ये फ्रीडम नहीं दी गई कि मैं अपने कपड़े चूज करूं, क्योंकि मैं वो नॉर्मल हीरोइन वाले कपड़े नहीं पहनना चाह रही थी, घाघरे और फॉल्स लैशेस और Yeah. फॉल्स एवरीथिंग एंड डांसिंग, वो नहीं, क्योंकि आशिकी का कैरेक्टर ऐसा था, बहुत सेंसिटिव था और वो ऑफन में लड़की थी, तो मुझे उस तरह के कपड़े, तो लकीली भानु अथैया के साथ मैंने काम किया हुआ था किसी मॉडलिंग की शूटिंग में, तो मैंने उनसे पूछा और उन्होंने कपड़े बनाए। पर मुझे आज ये लगता है कि जो हम कैरेक्टर प्ले करते हैं या अपनी लाइफ में हम जो रोल प्ले करते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो हमने जो कपड़े पहन रखे हैं उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि Definitely. नहीं। हम ऑफिस में जाते हैं तो हम कोट और सूट लोग पहन के जाते हैं, खैर पुरानी इंडिया में तो लोग धोती पहन के जाते थे, जो कि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली एंड फ्रेंडली टू योर बॉडी है। पर खैर कोई नहीं, पर ये हुआ है, आज हम ये कहते हैं, अगर हम हर जगह उस हिसाब के कपड़े पहनते हैं। पर इसके बारे में अवेयरनेस बहुत यंग आपकी शुरू हो जाती है अगर आप थिएटर करते हैं, कि Yeah. लोगों को बाद में तो ये होता है कि हाँ भाई मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, या मैं वहां जा रहा हूँ तो वहां के हिसाब के कपड़े पहनूंगा, सो अवेयरनेस अबाउट योर आउटर लाइक योर ड्रेस सेंस, वो भी थिएटर से आती है ना। Correct. आपको क्या लगता है? Yeah, correct. Because you're talking about the responsibility that we become responsible for ourselves, for our costume, for our properties, for our makeup. Yeah, I think because and also how to manage the time, like especially when you're a student or your children, right? So Right. You want to do theater parallelly. Right. In the same time, you need to manage your studies and your family responsibilities. So lots of things. तो आपको उसमें बैलेंस करना जो है ना वो सीखना पड़ता है। और बच्चों के लिए उसमें ये हो जाता है कि खासकर अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो शाम के टाइम में मान के चलिए थिएटर करने गए हैं, लेकिन आपको स्कूल के होमवर्क वगैरह ये सब भी मैनेज करना, तो बच्चे वहां पर सीख रहे होते हैं कि किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल Right. होना है, और वो सब चीजों Right. के लिए जवाबदेही उनकी बन जाती है। and they start to tackle more things in the same time. बहुत सारी Right. चीजों को एक साथ वो करना सीख रहे होते हैं। And I think that's a good way of learning through the theater, because otherwise your normal life style is like you just going to school and parents are giving you lots of other classes, extra classes, grooming class and these classes, Right. and those classes. Right. And Right. in theater, by doing you learn how to be responsible. करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैंने जब थिएटर एक्चुअली कॉलेज में शुरू किया फर्स्ट ईयर में, तो तब मैंने प्ले किया था पांचवा सवार, जो कि पंकज कपूर आपके एनर्जी से आए थे उस समय हमारे कॉलेज में प्ले डायरेक्ट करने, और मुझे खैर उसके लिए चूज किया गया। उसमें एक लड़की थी पांचवा सवार में और 12 लड़के थे, तो खैर सो देन
आई हैड टू मैनेज, क्योंकि शाम को हम वहां रिहर्सल कर रहे हैं दोपहर को, तो कॉलेज भी चल रहा है। तो कॉलेज के साथ में मैं कैसे कब रिहर्सल करूंगी, और मैं घर पे क्या बताने वाली हूँ, क्योंकि पापा कहेंगे कि क्या अभी तो फर्स्ट कॉलेज में आई हो, ये प्ले करने की क्या जरूरत है, पढ़ाई में ध्यान दो। हो सकता है कहीं ऐसा, तो क्या थोड़ा डर भी लगता है कि कहूँ कि ना कहूँ, कैसे कहूँ। तो तो मैंने किस तरीके से वो मैनेज करने, टाइम मैनेजमेंट मैंने सीखा कि किस तरीके से मैं दोपहर को, फिर मैंने उनको कहा मैं दोपहर को रिहर्सल कर सकती हूँ, मैं शाम को नहीं आ पाऊंगी। पर करते करते जब वो प्ले निकला, तो उसके बाद मैं सेकेंड ईयर में मेरा दूसरा प्ले पांच था, बेनजीर भुट्टो मैंने प्ले किया था आयुष जौहर के भुट्टो में। तो खैर उसमें बाय देन शाम को वो रिहर्सल था, क्योंकि सारे वहां ग्रोन अप थे। मैं 16 साल की थी, और हमारा दूसरा यंगेस्ट स्टूडेंट, यंगेस्ट एक्टर करीबन 24 या 25 साल का था। तो वो लोग काम करते हुए लोग थे, तो उनके पास तो शाम को ही फ्री था। तो हमारा मॉडर्न स्कूल में दिल्ली में हमारा रिहर्सल होता था, तो मैं शाम को मैंने रिहर्सल करना शुरू किया। तो मुझे फिर किस तरीके से सुबह क्लास करनी है, शाम को 3 घंटे ये रिहर्सल करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पढ़ाई भी करनी है, ये भी करना है, तो यू नो इट बिल्ड्स एन अवेयरनेस इसने, जो कि शायद मैं बाद में अकेले जब मैंने रहना शुरू किया, मैं अपनी लाइफ, उस समय कोई अकेला नहीं रह रहा था 1980s, लेट 1980s और अर्ली 90s में। आजकल तो ये नॉर्मल ट्रेंड बन गया है ट्रेंड लड़कियों के बन साथ। गया। हाँ, पर उस समय नहीं था, उस समय इट वॉज अपोज्ड एक्चुअली। तो खैर एनीवे, बट बिकॉज आई हैड दिस अंडरस्टैंडिंग कि मैं किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करूंगी, मैं कैसे अपने को मैनेज करूंगी, उसने मेरे को बहुत कितना मदद किया है अकेले रहने में। तो करेक्ट। यू नो इट इट्स अ लॉट ऑफ इट्स सो मेनी डिफरेंट थिंग्स पीपल डोंट अंडरस्टैंड। लोगों को लगता है क्या यार, पिक्चर है, एक्टिंग करती है, एक्टर है, जी। दिखाती है, एक्टिंग करती है, एक्सप्रेशन, बट इवन द एक्सप्रेशन, you understand And about yeah, your own expressions. क्या I think बताइए? that's a correct thing when you're saying like you talk, how you convince your father about these things, right? क्योंकि Right. खासकर बच्चों में ये होती है कि वो मतलब कि अपनी बात को, बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ही शाई Correct. नेचर के होते हैं, सो दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ, Hmm. नॉट मतलब स्कूल में ही नहीं, मतलब अपने दोस्तों में भी, और Hmm. अपने अपने माता पिता को भी वो एक्सप्रेस नहीं कर Hmm. पाते अपनी बातों को। बट Right. when they are involved in theater, and Hmm. they after like when I did workshop with in theater and education company NHD, so Hmm. वहाँ पे हम लोग इस तरह के बहुत सारे बच्चे आते हैं, मतलब अलग अलग कम्युनिटीज के और अलग अलग Hmm. नेचर के। तो वहाँ पे कुछ बच्चे शुरू में आते हैं बिल्कुल ही चुप, शांत, और जैसे ही 1 महीने का वर्कशॉप खत्म होता है तो वो लोग बहुत खुल जाते हैं। तो कई बार पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि अरे ये ये हमारा ही बच्चा है, या पहले ये बोल नहीं पाता था, इतना ज्यादा घर में बोलने लग गया है। और छोटे छोटे, जैसे मुझे अभी भी याद है, एक लड़का 10 साल का बच्चा, उसका नाम जहान था। तो हम लोग एक बाय बाय जेस्चर करके किया करते थे, जैसे हर वर्कशॉप के डे एंड होने पर। तो उसमें ये था कि बाय बाय जेस्चर में कोई भी 2 राइमिक वर्ड बोलना है। तो एक 10 साल के बच्चे ने अपने आप ही 2 लाइन की मतलब पोएम जैसा कुछ लिख करके लिखा है, राइमिंग पोएम। और आज भी सुनाएंगे मैं वो भूल, पोयम हमें? हाँ, या बताइए बताइए जरा, वो पोयम हाँ, सुनाएं। मैं आज भी भूल नहीं पाया वो 2 लाइन उसके, और उस हाँ, बच्चे हाँ। को भी नहीं भूल पाया हूँ। और पता है, वर्कशॉप खत्म होने के बाद उस बच्चे ने मुझे कई बार कॉल किया, सर आई मिस यू, ओह माय गॉड। अच्छा। So the line is like that, um, and he do gesture also with that, so we all अच्छा, follow the gesture, so like अच्छा। अपनी पाठशाला ऐसी हो, रोलर कोस्टर जैसी हो, so it's a line, and he तो मैंने पूछा ये किसने लिखा है, so he said yeah sir, I make it. So that's how they start हाँ, to express राइट, their self करेक्ट। by physical movements, by their own lines. Yeah, it's amazing. हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है ना। क्या होता है कि खुलते हैं लोग, इवन 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 स्पीच का जब हम लोग बोलते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारी आवाज कैसी है,
अपनी आवाज के बारे में सजगता आती, ये तेज बोलना है, ये हल्के बोलना है, ये ऐसे हाई टोन में बोलना है, लो टोन में बोलना है, ये सब चीजें हमको समझ में आती. And even later on, for children as they're growing up, to be leaders, to be, guys, they in even as like in big companies as the head of association, they, because they have had some kind of an experience in voice control, तो उनको समझ में आता है कि मैं कहाँ किस तरीके से बोलूं, कैसे न बोलूं. अगर मुझे ये चीज एक्सप्रेस करनी है, तो ये इमोशन मुझे दिखाना है, तो मैं उसको किस तरीके से बोलूं. तो ये जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए, इनफैक्ट जैसे कि मैं सोचती हूँ कि योग में मैंने जो अनुफान योग बनाया, वो यही बेसिक चीजें हैं बच्चों के लिए. पर आज उसकी कम बात करेंगे. मेनली आज हम जो थिएटर की बात कर रहे हैं कि ये कैसे जुड़ सकता है. मुझे ये दिखाई पड़ता है क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है. ये मेरी कोई लिखी पढ़ी बात नहीं है या किसी ने मुझे बताया नहीं है. मैंने खुद खुद अपनी जीवन में ये देखा है कि किस तरीके से मुझे इसमें अवेयरनेस बिल्डिंग में मुझे थिएटर, ड्रामा, एक्टिंग ने कितनी हेल्प करी. बाद में हमने एक्टिंग प्रोफेशनली करी या नहीं करी, वो अलग बात है. पर करेक्ट. आप जो भी जीवन में कर रहे हैं, बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, वो जीवन यस. में जो कुछ भी करेंगे, उसमें उनको इसकी अटूट हेल्प होगी, बहुत बड़ी हेल्प है. So I feel that's why I feel now with the foundation that I want to start a project. That's why, we have been talking about it for 2 years, I think. पर हर चीज का समय होता है. And अब मुझे ये लगता है कि अब ये समय है, तो हम जो है वर्कशॉप, अब क्योंकि ज्यादातर चीजें ऑनलाइन, आप सिंगापुर में हैं, मैं करेक्ट. मुंबई में हूँ, तो हम कुछ ऑनलाइन वर्कशॉप बच्चों के साथ जरूर करेंगे. या और धीरे डेफिनेटली. धीरे, है ना. मेरे को तो मतलब ऐसा आता है कि 1 लाख बच्चे कर लेंगे 2 साल के अंदर. मतलब, I start thinking figures, but let's start. And I think that even we can even work. What do you think? What do you think about this idea? Yeah, I think that's a good thing to connect with children from, Huh. especially from different part of the world. It's not only about Hmm. India or only about Mumbai, Right. because I have this kind of experience, because I continuously, nowadays I'm in a training process, so I don't have time to do that much things with हाँ. children. But यहाँ भी मैंने, सिंगापुर में भी मैंने कुछ बच्चों के साथ में, यहाँ भी कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि वर्कशॉप करने के लिए. यहाँ का एक एक्सपीरियंस अलग ही तरीके का रहा कि चिल्ड्रन, बच्चों के साथ, क्योंकि यहाँ पे मल्टी कल्चरल बच्चे हैं, जैसे कोई मले है, कोई चाइनीज है, कोई इंडियन है, एंड that's the group is becoming very interesting in that way. And yeah, if we will do a kind of online children theater workshop, और जहाँ पर अलग अलग जगह से बच्चे जुड़ेंगे, मालूम पड़ा कोई बच्चा बिहार से जुड़ा है, कोई एकदम उड़ीसा से जुड़ा है, they having a different language, right, different way of expression, and that's what my institute also talking about, interculturalism, how you are different from each other and how you contribute something to each other. Right. And I think that's a very good idea. We need to plan something about that, and very soon we will come. Right. And we will do some online multicultural performance, maybe participatory, where the audience will participate into that. Yeah. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. ये तो पता है क्या, मेरे पास कई लोग आते हैं, जैसे किसी ने ये भी कहा कि भाई आप, मतलब कि कई लोग जो एक्टर बनना चाहते, ग्रोन अप, मतलब बच्चे क्या, मतलब ये आई टॉक अबाउट द यूथ. तो कई लोग कहते हैं कि हम जो है, आप क्लास शुरू कीजिए, हम सीखना चाहते हैं एक्टिंग के बारे में. पर ये लोग स्पेसिफिकली एक्टर बनना चाहते हैं. Yes. ठीक है. अब
हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं एक building an awareness about oneself and about the environment. So the independence and self-dependence में किस तरीके से हमारे देश को और दुनिया में लोगों को इसका फायदा हो सकता है. So we are not just doing people who want to become actors, है ना. वो ठीक है, वो एक ग्रुप है लोगों का, बच्चे भी होते हैं जो कि एक्टर्स बनना चाहते हैं बड़े होकर, वो अलग कोई नहीं, वो भी ठीक है. बट दिस इज फॉर ऑल चिल्ड्रन, यू नो. ये सब बच्चों के लिए है, बच्चों की अवेयरनेस बिल्डिंग के लिए. And So, and you know, बताइए. last time I had this experience, and there is some of my friend from UK. His name हाँ. is Tony Silly, and we Hmm. did some workshop, and it's about mental health Okay. condition. Okay. But they are doing it particularly for the black men in the world. So Okay. मतलब वो जो इतना इंटरेस्टिंग था कि किस तरीके से उसमें क्या था कि अलग अलग जगह से ब्लैक जो टीनेजर्स और चिल्ड्रन थे उन लोगों ने ज्वाइन किया. और वो इसलिए किया था कि आज के समय में, ऐसे टाइम में जहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप को बहुत ही अकेला पाता है, तो वो किस तरीके से क्रिएटिवली अपने आप को एंगेज रखे ताकि वो अपने आप को जिंदा महसूस करते रहे, क्योंकि कौन किस तरीके से है और कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं. तो नहीं, बिल्कुल या एग्जैक्टली. द कोरोना वायरस, एंड वो तो मतलब उसने तो जो, you know, if we talk about it, with the kind of changes that has brought, and of course the black movement was very big about 6 months ago. The Black Lives Matters was a hashtag that was going on करेक्ट. everywhere, and so there's a time came for that also, because वो struggle और तो बहुत सालों से उन लोगों का चल रहा है. But coronavirus, in as much as it destroyed a lot of things and it destroyed a lot of people, it also gave a voice to a lot of movements which were sort of, surfacing but not yet out, which were palpitating inside. ये है, हमको ये feeling है, निकल नहीं रहा है वो कोरोना वायरस निकाल के लाया. Mental health is something definitely. Anufan Yoga started with mental health. That is the basis start of Anufan Yoga. So that's what it does. So I don't even keep saying mental health, because that is our root, you know. And definitely I completely agree that we need, after Corona, the mental health is a bigger issue than it ever was. But then on the other hand, mental health was always an issue to a certain extent or to a large extent, but now वो बाहर निकल के आ रहा है. करेक्ट. बहुत सारे लोग, जब मैंने 2014 में जब मैंने अनुपान योगा शुरू किया था, जब मैं कहती थी कि वो लोग पूछते थे किसके लिए, मैं बोलती थी मेंटल हेल्थ पे. हाँ हाँ, दूसरी तरफ उनकी नजर चली जाती थी. दे वर नॉट इंटरेस्टेड. द मेंटल हेल्थ टुडे एवरीबॉडी इज लिसनिंग. अच्छा, हाँ, वाओ, मेंटल हेल्थ, रियली, वाओ, you know. So coronavirus has brought awareness about a lot of issues and problems as Yeah. well. So I think that we need to look at the good side of things, and that is really positive psychology, positive thinking, and affirmations of which we can do through theater. And Anufan can include theater as another activity which can raise, which can better mental health. Correct. Yeah, I will look forward for this because just now Lovely. I'm watching pictures. आपके जो पीछे जो बच्चियां हैं जो हंस रही हैं, तो मालूम पड़ा कि इस स्क्रीन पर next time when we will meet with the workshop, so there are lots of children's face in the Zoom, Right. and they having the great smile on their अच्छा, faces. something, let me tell you something. Yes, smile. ये Yeah. लड़कियां इतनी डिप्रेस थी जब मैं इनको मिली. ये दिल्ली में रेनबो हाउस करके है, जहाँ पे सारी लड़कियां ऑर्फन्स हैं. वहाँ ऑर्फन बच्चों को लेते हैं. तो वहाँ सबसे बड़ी हंसी की बात तो मेरी ये थी, मैंने कहा मैंने आशिकी में आई वाज एन ऑर्फन गर्ल, आज मैं अनुफान योगा सिखा रही हूँ ऑर्फन लड़कियों को. एनीवे, and after this was just after a 1 hour session,
Devika became so lively. तो उनकी शक्लें देखो, पता लगता है कि ये इतनी डिप्रेस थी लड़कियां, एकदम Yeah. झुक के बैठी थी, आंखें बंद, इधर उधर देख, मतलब you know, and just after the class, this is the result of it. So I think that this is the best way. People say कि आपकी रिसर्च में क्या वेरिएबल्स हैं, उसका डेटा दिखाइए और ये करिए वो करिए। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, वो आप लोगों को देख लीजिए। फर्क आपको आधे घंटे एक घंटे में जो फर्क दिखाई पड़ेगा, वो सबसे बड़ी, उससे बड़ा तो कोई डेटा हो ही नहीं सकता, यू नो। बिल्कुल। So let's do that. Lovely and great talking. Thank you so much, Colleen, for joining us. Yeah. And we also, on the same hand, if you know, we invite anybody who has any ideas, who wants to know more, who wants, you know, to, you know, support us, who wants to be with us, who wants to participate, who wants to, you know, be in the giving end, whatever, whether you're an NGO, whether you're an individual, whether you're anybody, it doesn't matter. And you know, because this is an initiative that Anu Agarwal Foundation is funding, and so we are happy to give this out to whoever uh, feels the relevance of this, right? Yes. Thank you so much. Namaste. Thank you, Anuji. Namaste. शाम को मिलेंगे, हमारा बिल्कुल इंस्टाग्राम भी है। बिल्कुल शाम।